Good evening, everyone. Thank you very much for being here with us at this occasion. And this would be probably the last press conference of this year we have called. We have certain announcement that we're going to make for Foxhawk Ventures, especially that will related to our pre-IPO as well, IPO, and of course, I mean we have certain appointments for the people in the board. So and also certain acquisitions, fundings, a lot of things are there, So for that, I've invited you guys. So thank you so much for being here. Yeah, questions. Um, Pre-IPO valuation, price, minimum quantity, is it decided yet or something? Hmm. So अभी actually क्या है कि right now pre-IPO is going on, and right now we have got a price band of 1230 rupees per share. Okay. अभी जो valuation है वो 105 CR क्रॉस हो रही है ना? And we are looking to raise more than 100 CR from the market. But this is again because हमारा जो share price था वो 750 था maybe 10 days back, right? Now it has been increased for 1230 rupees. So yep, I think it's going well, and I believe that Indian people and customer, they're really good. They will show some trust to us. We are not an Indian company, but founded is Indian. So of course, for me, country is first, and company is second. Uh, बस आपको नहीं लो. सर दोबारा करें। हाँ. सर 3 साल में आईपीओ आ गया है कंपनी का। हम्म. ये रफ्तार कुछ ज़्यादा तेज है या मतलब क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? मुझे लगता है कि बहुत देर से है बिकॉज देखिए आप ना वो 3 साल आप मत ऐड कीजिए. ठीक है, आई टेल यू. वी स्टार्टेड इन 2020. ठीक है. आप उससे भी पीछे जाइए तो वी स्टार्टेड इन 2017. यू नो 2017 से 20 और 20 के बाद ये 25. राइट. तो आप ये मत बोलिए कि 3 साल. ये मेरी जो है ना 5 से 7 साल की मेहनत सिर्फ फॉक्सॉग में है. ऑल्सो यू नीड टू काउंट माई अर्लियर एक्सपीरियंस. आई मीन इट्स मोर देन, आई मीन 10 years. राइट. एंड वैसे भी मतलब जहाँ पे मुझे पहुँचना है उसके लिए रफ्तार शायद छोटी है मेरे लिए. सो ज़रूरी भी है. तो इट्स नॉट अर्ली, इट्स लेट फॉर मी. सर जब कोई तेज रफ्तार से चढ़ता है, सूरज ऊपर तरफ चढ़ता है तो बहुत लोग टांग खींचने वाले होते हैं। तो ऐसे क्रिटिक्स को आपका क्या जवाब होगा? दे आर द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, बाय द वे. यू नो पता है, आई एम द पर्सन हु गेट्स मोर एक्साइटेड. यू नो इफ समवन इज टेलिंग मी कि यार ये काम आप नहीं कर सकते, तो आई मीन आई एम लाइक कि यार यही तो मुझे करना है. Yeah. And of course, I mean, I'll answer you guys, but I'd like to introduce the new appointment first of all, right? And I have a lot of questions that I'll be answering you. Yeah. So Vansika is here, right? One of the youngest board member in the house, and she is being appointed. So cheers for her. Come. We have another board member here as well. We have appointed Shulpaniji. Please come. You know, they all would be taking care of the acquisition of our Berries Auto, अभी जो हमने acquire किया है ना. तो उसके रिगार्डिंग आई वुड लव कि आप वो जो सवाल है आप इनसे पूछ सकते हैं, और बाकी के जो सवाल है मैं I'll be here to answer for you. And meanwhile, our CA would also be joining, Ashwin ji. So he will be more into answering to the financial questions. Yeah. Yeah. तो वंशिका, आप यंगेस्ट डायरेक्टर बने हैं फोर्ब्स के, आपको कैसा लगता है और मिस्टर पोदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Okay, there are a lot of things that I want to say. First of all, when it comes to becoming the youngest board of director, of course, it's a big achievement. Until morning, it didn't hit me that I'm becoming the youngest board of director. It was right before 5 minutes of this meeting that I realized that, okay, now I'm being onboarded. About the fact that what I feel or what I understand about Mr. Podar is, um, I thank him a lot for the big opportunity that he gave me. There's one thing that he said yesterday कि सबको सिर्फ एक opportunity की तलाश होती है. I'm thankful कि मुझे वो opportunity मिल रही है. I'm also grateful कि मुझे वो opportunity मिल रही है. And youngest होना, oldest होना, that is a matter of time. I think मेरा experience और मेरा काम अपने आप को उस बारे में बोलेगा. Thank you. तो तरुण जी, आपसे सवाल है कि आप जैसे यंग जो भारत की युवा पीढ़ी है उसके लिए एक मोटिवेटर का काम करते हैं, कई लोग आपको आइडल मानते हैं, आप रिसेंटली फोर्ब्स में भी फीचर हुए, आपकी पूरी स्टोरी आई कि आप किस तरह एक कार क्लीनर से आप एक बैंक को भी आप ओन करते हैं। इसके बारे में आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, कितनी दूर आप सफर तय कर चुके हैं और कितना अभी और बाकी है?
कभी कभी मुझे ये बोलती है, पता है ना, कि आपको नहीं लगता कि कहाँ आ गया मैं, राइट? ऑफ कोर्स समटाइम इट हिट्स, कि कहाँ था मैं, कहाँ आ गया, बट being very honest, I would love and I would like to thank to the people, who shown trust to us, मतलब कुछ लोग जैसे कि आप इनसे मिले, शूल पानी जी, आई मीन ही जस्ट लाइक माई गार्डियन, यू नो मतलब इन लोगों का इतना सपोर्ट रहा है, लाइक दे आर लाइक कि यार करो ना, मैं पीछे हूँ ना, यू नो सपोर्ट। और देखिए, आई वुड लाइक टू थैंक टू पीपल, जिन्होंने टाइम पे मुझे अपना हाथ दिया, और जिन्होंने मेरे टाइम पे उन्होंने अपना हाथ खींचा, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम, पहला, जिन्होंने खींचा तो मुझे थोड़ा दर्द हुआ कि यार कोई और हाथ तो ढूंढना पड़ेगा मुझे, राइट? जिन्होंने हाथ दिया, थैंक्स टू देम, यू नो जहाँ तक जर्नी की बात है, तो आई नो एंड यू ऑल नो, कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया, बट आई बिलीव दैट लाइक इट नेवर मैटर्स वे यू कम फ्रॉम, व्हेन यू नो दैट वेयर आर यू गोइंग, सो आई नो दैट मुझे कहाँ जाना है, इट्स बीन वी आर सेलिब्रेटिंग 5 years of Foxhog, एंड 5 सालों में Foxhog, आई मीन इट्स वंडरफुल। आई मीन पीपल जो आप मेरे एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं यहाँ पे, आई मीन दे नॉट माई एम्प्लॉयज़, दे आर माई पार्टनर्स, हाउ दे हैव बीन वर्किंग, आप आई मीन डे नाइट सब काम करते हैं, सो इट्स नॉट ओनली मी, मैं कभी भी खुद नहीं जाता हूँ, मैं हम सबको साथ लेकर चलता हूँ, इट्स नॉट ओनली मी, इट्स एवरी वन फॉर अस। यस। सर आजकल वायरलिटी का दौर है और एक बहुत ज़्यादा वायरल क्वेश्चन जो मीडिया पे देखा जा रहा है, तो तरुण पोदार की शादी कब होगी? करेंगे तो बताएंगे आपको हम, डेफिनेटली। सर, तो सर अभी क्या आप जो ये बेरी ऑटो का जो चल रहा है इसके बारे में एक्वायर करने के बारे में आप क्या समझते हैं कि कैसे इसको आप प्रॉफिट बिजनेस इस सवाल का जवाब इस सवाल का जवाब जो है ना, आप वंशिका देगी और शूलपानी देंगे आपको। सर बेरीज ऑटो के साथ द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स, नंबर वन तो यही थी कि उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत थी, और कंसिडरिंग इट इज़ अ लेगेसी ऑफ 75 years, इट वोंट बी अप्रोप्रिएट टू क्विट ऑन देम, क्योंकि एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकेंड चांस, और कंसिडरिंग 75 years की ऑलरेडी लेगेसी है, इट्स ओनली अप्रोप्रिएट इफ़ वी बिल्ड इट फॉरवर्ड। रही बात ये कि कंपनी से रिलेटेड हमारे क्या प्लान्स हैं रीस्ट्रक्चरिंग के या एक्वायर करने के, इनिशियल स्टेजेस में है, वी आर सर्कलिंग आउट एवरी सिंगल डिटेल, धीरे धीरे ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स लेके वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। बट कुछ मेजर चेंजेस जो हम करेंगे वो हम यही करेंगे कि हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेके आएंगे जो इनिशियली नहीं था, विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस, विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉलिसीज़ जो कि इनिशियली इम्प्लीमेंटेड नहीं थी। बाकी आई थिंक शूलपानी सर के पास ज़्यादा कैसे हम इसको ग्रो करेंगे उसके बारे में। शूलपानी जी कैसे मैनेज करेंगे इतनी बड़ी कंपनी को, कुछ प्लान या कुछ अगर आप मुखातिब कराना चाहें हमें? जी, सबसे बड़ी बात है अभी कंपनी को टेक ओवर किया गया है, और पीछे का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको किस तरीके से वो काम कर रहे थे, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम था, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और इस कंपनी में क्या हम लोग कर सकते हैं बेटर, उस पर ध्यान देंगे। उनकी जो लुकफॉल थी, सारे उनका जो पीछे का जो प्रॉब्लम सब था उसको सॉर्ट आउट करके इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, नंबर वन। नंबर टू, लेबर प्रॉब्लम बहुत सारे तरह की अंदर में मामला है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा है। Would you like to add something? You know, it's not something that how company we will run, because company run करने के लिए पैसा नहीं, intention की ज़रूरत होती है, ठीक है, and we are intent to run that. There are certain things that I would like to change, because you know restructuring would be one of the process that we'll be following, right? Second, better employment, because revival of Berry's Auto is the revival of Uttar Pradesh. Okay, it is not only the revival of this company, because I believe that Berry's Auto, they have been one of the biggest company in Uttar Pradesh. I believe, they have provided jobs to a lot of people. They are the source of economy for Uttar Pradesh, and I believe that if we are acquiring Berry's Auto in India, I think this would be, and this could be, the revival of Lucknow and Uttar Pradesh as well. We have multiple plans. We have many plans for employees. We have good plans for existing board members. We have good plans for future traders, suppliers.
buyers, so of course, but it will take some time. This acquisition may take 1 or 2 years to complete, but I think that we are hopeful for that, and we'll be making a good comeback for Berries Auto. Yeah. तो तरुण जी, बेरी ऑटो आप एक्वायर कर रहे हैं, फिंको आपकी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी है, क्रंची भी आप एक्वायर अभी कर रहे हैं, ऐसा कर चुके हैं, ऐसा लगता है कि आप तो शॉपिंग बैग लेके निकले हैं और कंपनी एक्वायर कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या करते हैं? इतना डाइवर्सिफाइड जो आपका एक पोर्टफोलियो बन गया है डाइवर्सिफाइड कंपनीज का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा, इट्स आई एम ऑन शॉपिंग, राइट। मैं कंपनीज खरीद रहा हूँ, ठीक है। देखिए, कंपनीज खरीदने का मतलब ये नहीं है कि वी आर जस्ट ऑन शॉपिंग, राइट। जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप वही चीज़ें खरीदते हैं जो आपके यूज़ की होती है, ठीक है ना। तो मैं वैसा इंसान हूँ, जो मेरे यूज़ का है मैं वही खरीद रहा हूँ, ठीक है। और डाइवर्सिफाई होने का देखिए, अगर सिर्फ मुझे पैसा कमाना होता, तो मैं किसी भी एक कंपनी में एक बड़ी सी इन्वेस्टमेंट डाल के सो जाता, राइट। सो इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंपनीज मीन्स द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी शुड बी सॉल्व्ड, ठीक है। तो ये हमारा मोटो है इसके बारे में जी। सो अब सवाल मैं पूछूंगा वंशिका से कि वंशिका, फॉक्सहॉग एक छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, वेंचर कैपिटल है। आप कैसे इतने सारे क्लाइंट्स और जो एम्प्लॉयज और कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसे डील करके मैनेज करेंगे? Sir, I'm a lawyer by profession. I've been taught to deal with clients, number one. Number two, about the fact कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी में सर ने इतना बड़ा फैसला लिया एक यंगेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाने का, तो आई एम श्योर ही हैज़ हिज रीजंस। रही बात ये कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँगी, जो मेरे पास लेटर आया था आज, उसमें लिखा था दैट माई लीगल एक्यूमेंट, माई स्पेशलाइजेशंस एंड माई स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ टू लीड आर गोइंग टू बी द की फैक्टर्स फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, एंड आई थिंक मैं उसी पे बिल्ड ऑन करती रहूँगी एंड आई एम गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट माई बेस्ट। आप नर्वस हैं या नहीं हैं या थोड़ी थोड़ी है? मैंने आपको बताया ना, सुबह तक मुझे हिट नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी पोजीशन मिल रही है। 5 मिनट पहले जब ये पता लगा कि सारी प्रेस आ गई है, तब लगा कि ओ शिट, इट्स बिकमिंग अ रियलिटी। तो नर्वस तो नहीं हूँ, आई बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई नो आई हैव सो मेनी पीपल बैकिंग मी अप। एंड रही बात आगे फ्यूचर की, अगर नर्वस होंगी तो हम श्योर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बता दूंगी कि नर्वस हूँ या नहीं हूँ। नहीं, जैसे तरुण जी ने तो बताया कि भाई मेरे को तो क्रिटिक्स जो है वो मोटिवेट करते हैं, आपको क्या क्रिटिक्स से डर लगता है या आप भी वही मोटिवेट होती हैं, या अब मोटिवेट होना शुरू हो जाएगी सर की बात सुन के? अब होना शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई क्रिटिसिज्म आई नहीं है, आएगी तो देखी जाएगी। और फॉक्सहॉग जैसी कंपनी से जुड़ने के बाद एक पब्लिक फिगर आप आ जाएंगे, अब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और ये सब होगा, तो उसके लिए आप कैसे वो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? कुछ उसका भी सोचा है अभी कि जब पूरा लाइमलाइट मिलेगा तो कैसा रहेगा? आई थिंक आई क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। धीरे धीरे जब प्रेशर बिल्ड ऑन होने लगेगा तो आई डील विद इट अकॉर्डिंगली, बट आई रेस्ट अश्योर्ड वो मेरे काम को इफेक्ट नहीं करता। कुछ मैसेज आप यंग जो बच्चे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं और कुछ अच्छी पोजीशंस पे पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनके लिए कुछ मैसेज? मैं कल अपने ऑफिस में बैठ के सर के साथ एक बात कर रही थी कि आई सॉ दिस पोस्ट जिसमें था कि कभी कभी बड़े सपने देख लेने चाहिए, पूरे हो जाते हैं। तो यंग जनरेशन से यही है कि कभी कभी बड़े सपने बड़े ख्याल देख लेने चाहिए, हो जाती है। पैर फैला लो, फिर सोच लो कि चादर कितनी लंबी है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तरुण जी, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि एक बुक थी आपकी जो काफ़ी वायरल थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बुक वॉज द बेस्ट सेलर, एंड अब हम उसको सोच रहे हैं कि रीलॉन्च करें, बिकॉज जब इतना कांड हो गया है तो थोड़ा सा और सही। नहीं तो मतलब अब कुछ और मसाला हमें अब मिलने वाला है? Not like that. I'm not going to add anything like that. It would be just the relaunch of this book. ओके ओके सर, आईपीओ से पहले आपकी सैलरी बढ़ाई गई, ऐसा कुछ क्यों? uh, it is just the board decision, I'll tell you, and I believe that I deserve that, okay, because I have been doing all these things, in my leadership I believe that Foxconn is at this level, in India, so मुझे लगता है सैलरी थोड़ी कम बढ़ाई गई, ज़्यादा होना चाहिए। और सर, ये आईपीओ के अलावा आप और क्या क्या कुछ प्लान्स हैं अभी फ्यूचर के जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों से और देशवासियों से? So like Berries Auto, of course, this good news for us. We're also looking to acquire few companies in FMCG as well. आप फिर बोलेंगे शॉपिंग पे हैं तो of course we are on it, right? Because recently हमने Crunchy acquired किया है and I'm just looking for to add more portfolios in FMCG product, because
देखिए आईपीओ से पैसा आएगा, लोग तो सवाल करेंगे ना कि पैसा कहाँ खर्च करोगे, राइट? आप ही लोग आएंगे पूछने के लिए भाई पैसा कहाँ गया, यू नो। तो ऑफ कोर्स आई थिंक दैट कि वी शुड हैव दोज काइंड ऑफ पोर्टफोलियो कंपनीज, राइट, जहाँ पे वी कुड बी एबल टू इन्वेस्ट एंड वी कुड बी एबल टू गिव मोर रिटर्न्स टू द पब्लिक, बिकॉज मेरा ऐसा कोई आई मीन मोटो नहीं है कि पब्लिक से पैसा आया मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ, उसके बाद फिर लोगों को बोला अच्छा ठीक है 5% रिटर्न आया, 2%, नो। आई एम लुकिंग फॉर माई ओन बिजनेसेस टू इन्वेस्ट, राइट, जहाँ पे मैं लोगों को अच्छे खासे रिटर्न दे सकूँ। एंड ऑफ कोर्स आई मीन एफएमसीजी में हम बढ़ा रहे हैं फिलहाल, वी हैव गुड प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एज वेल, जहाँ पे वी लुकिंग फॉर मोर ब्रांचेस टू ओपन इन द कंट्री। CSP सेंटर्स और प्लस मिनी CSP सेंटर्स हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हम ग्वालियर को फ़िलहाल टारगेट करेंगे, MP को हमने अभी तक टच नहीं किया उधर, सो विल डू दैट एज वेल। अलॉन्ग विद दैट कुछ VC फॉर विलेजेस जो हमारा मॉडल है उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज अभी तक ना आई मीन गवर्नमेंट कोई गवर्नेंस लेकर नहीं आई इस मुद्दे पे, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर कि जो हमारा नेक्स्ट बजट है, we have approached to the government, and I'm hopeful, like कि the Modi government will be supporting to us for this interest-free debt about it, that what we are offering, because there have been a lot of criticism about कि आप कैसे दे रहे हो, whether compliance, regulations, everything. So I think I request the government कि at least कम से कम इन चीज़ों को देखा जाए, हमें support किया जाए, and of course they have been very supportive towards all these things. We also looking to expand more ourselves in other countries as well. We are visiting to Hong Kong next week, so probably we're looking for कि अगर we would be able to expand more there. So yeah, and smaller loan facilities we are looking for some pay later services, credit line, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे नॉर्मल बैंकर और इंडियन बैंकर्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, बिकॉज आई मीन मेरा प्लान है इनोवेटिव बैंकिंग का, ठीक है। We are not looking to be the biggest venture capitalist in the country, we are just looking to be the banker in the country, you know. I'm not here to criticize the government, I should not do that, right? But ease of doing businesses सोशल मीडिया पे नहीं, रियलिटी में भी होनी चाहिए, आई बिलीव। नो कमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स बाय द वे, दैट्स ऑल। सर रिसेंटली आपको यूएस में भी बैंकिंग का जो लाइसेंस मिला है, तो कब से आप प्लान्स हैं वो स्टार्ट हो जाएगा और ग्राउंड रियलिटी में आ जाएगी वो चीज़, क्या आप एक बैंकिंग के ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे? हाँ, सो लाइक वी गॉट बैंकिंग लाइसेंस इन लॉस एंजलिस, राइट, एंड अभी फ़िलहाल में भी हमारी जो अभी बोर्ड मीटिंग है मार्च में, सो आई एम गोइंग देयर, राइट। तो उसके बाद हम थिंकिंग फॉर कि जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें मैं हमारे कुछ बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो मैं स्टार्ट करूँ कैलिफोर्निया में। विल बी एडिंग टुवर्ड्स कैलिफोर्निया, टेक्सास, लॉस एंजलिस एज वेल। सो तीन जगह सिटी हम कोशिश कर रहे हैं उसको कि हम इस्टेब्लिश करें। सर कहते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेवारी, जितनी बड़ी कंपनी, रात को टेंशन से नींद नहीं आती। मुझे बहुत आती है। आपको नींद आती है? आप इतने रिस्क लेते हैं, क्यों लेते हैं, और क्या रिस्क लेने से डर नहीं लगता? क्या बताना चाहेंगे? देखिए बताता हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा है ना, मैं किसी राजा खानदान से हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राज बनाने आया हूँ, बचाने नहीं आया हूँ, समझ गए। तो मेरे को कोई डर नहीं लगता है, मुझे कुछ बचाना है, कुछ सब डूब जाएगा कोई बात नहीं। आप सी दिस इज़ माई एबिलिटी कि मैं किसी भी दिन ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ। आप मेरा आज सब कुछ ले लीजिए, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एनी डे, तो कोई डर नहीं लगता है। मैंने खुद यहाँ पे चीज़ों को बनाया है, तो कोई बात नहीं, चला जाएगा, दोबारा मैं बना लूँगा, और क्या। शूलपानी जी से सर कितने एक्साइटेड है अभी? आपने फ्यूचर प्लान्स सुने हैं कंपनी के, क्या क्या उनके ऑपरेशंस होने वाले हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं? देखिए कंपनी का तो एक्साइटेड होना स्वाभाविक है। पहले हम लोग फर्स्ट टाइम इसको टेक ओवर किए हैं, तो अब इसको चलाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं, हम लोग का जो पुराना एक्सपीरियंस है वो उसमें यूटिलाइज करेंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे जो कंपनी को बढ़ा सके। और प्रॉपर जो कंपनी का जो एक चलाने का एक तरीका है, उसको पहले वाले जो डायरेक्टर थे उन्होंने क्या क्या कमी उसमें रहा है, हम लोग उस पॉइंट को पहले भी मैंने बताया, उस पर हम लोग पहले फोकस करेंगे, और जो भी हमारा उसके अंतर्गत कमियां हैं उसको दूर करके हम लोग उसको बढ़ाएंगे। लेबर हमारा जो पहले का जो लेबर है, उनके साथ जो अच्छे लेबर हैं उनको भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे उसमें, और उससे प्रोडक्शन बेटर होगा, क्योंकि वो पहले से एक्सपीरियंस है, तो वो भी लेंगे। फिर नए लोगों को लाएंगे ताकि कंपनी अच्छा से रन कर सकें, हम लोग एक जगह पे आ सके बढ़िया से। जितनी जल्दी हो सकता है उसको हम लोग फोकस करेंगे।
सो तरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे यंग बच्चों के लिए, कैसे अपॉर्चुनिटीज अपने लिए जनरेट करें? क्योंकि आज के समय में अपॉर्चुनिटीज मिलना तो बहुत दूर की बात है, जनरेट कैसे की जाए? कैसे आपने जो शुरुआत करी, आज आप इस स्तर पे हैं कि आप लाखों करोड़ों बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं बड़ी कंपनी से, उनके लिए क्या संदेश है? दो तीन चीज़ें आई वुड लाइक टू टेल अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, यू नो, smartest people are people who have achieved something, you know, they're not smartest. बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग नहीं होते उन्होंने कुछ अचीव किया हो तो दे आर जस्ट कंसिस्टेंट, वो लगातार चीज़ों को करते रहते हैं, सो देन दे अचीव थिंग्स, राइट, यू नो. सेकेंड, फॉर द न्यू जनरेशन, स्पेशली जनरेशन्स मेरे से जो पहले वाली जो जनरेशन है, यू नो, आई मीन जो अभी के लोग हैं, उनको पता है क्या लगता है कि कुछ भी हो, आई मीन तुमने मेरा इज्जत ख़राब कर दी, यार तुमने बनाया क्या है जो इज्जत तुम्हारी ख़राब होगी, यू नो. सो ये जो मेंटालिटी, द प्रेशर ऑफ बीइंग लाइक्ड बाय समवन, that is the biggest pressure for the people, you know. Why are you caring that people are liking you or not, right? So I think इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए. I mean we have a biggest pressure on us कि लोग मुझे पसंद करें, नहीं कर रहे हैं, फाइन ना. So this is something, the biggest thing that people should leave, you know. कि मेरी इज्जत चली जाएगी, तुमने मेरा नाम ख़राब कर दिया. तुमने बनाया क्या अभी तक जो तुम्हारा नाम ख़राब हो गया? आई मीन 20 साल के हो तुम और तुमने क्या ऐसा बना लिया कि तुम्हारा नाम ख़राब हो जाएगा, यू नो. सो आई थिंक दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर. एंड द बेस्ट एंड बिगेस्ट पार्ट फॉर द पीपल स्पेशली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, यू नो, कि जब लोग आपके बारे में बोलना स्टार्ट करें ना, ठीक है, तो आप चुप हो जाइए, ठीक है. साइलेंस इज़ द बिगेस्ट आंसर and the success is the biggest revenge, you know. So I think that we should stick on it. Yep. सर बस आज का अंतिम प्रश्न यही रहेगा कि अभी हमने हाल ही के दिनों में देखा पीयूष बंसल को वो बेल रिंग करते हुए शेयर मार्केट की, और आने वाले समय में अमन गुप्ता भी अब करने ही वाले हैं. आपको हम कब देख रहे हैं वो सुबह 9 बजे घंटी बजाते हुए? Thank you so much for this question, and we are hopeful that we are going to be listed in 2026 because अभी तक मैंने उन चीज़ों के लिए अप्रोच नहीं किया, बट आई एम लुकिंग फॉर, यू नो, कि जो हमारा नेक्स्ट जो ये फाइनेंशियल ईयर में एंड कर रहा हूँ ना इंडिया में, तो आफ्टर दैट ही हमारा कोई प्लान है. बट अभी प्री IPO चल रहा है. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कि हम कितने पानी में हैं, हम वो जानना चाहते हैं पहले, है ना. उसके बाद लिस्टिंग की तैयारी चल रही है, बट अभी तक मैं जा नहीं रहा हूँ लिस्टिंग के लिए. इवन इफ़ यू आई वॉन्ट आई कैन गो, बट मैं जा नहीं रहा. आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज देखिए IPO इज ऑल्सो वेरी लर्निंग फेज फॉर मी एज वेल, यू नो. आई मीन ना ही मैंने किसी कंपनी में ऐसा काम किया जहाँ IPO के स्टेज का हो. ये मेरा खुद की IPO और मैं खुद सीख रहा हूँ. दिस इज़ ऑल्सो, यू नो, लर्निंग फेज फॉर मी. तो मुझे लगता है कि पहले मुझे तो जानने दीजिए कि मैं कितने पानी में हूँ, राइट. तब मैं तैयारी के साथ सेबी के पास जाऊँगा कि ठीक है, लेट्स गो फॉर लिस्टिंग, बट नॉट नाउ. आई नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. लेट द प्री IPO टू गो, right? And in 2026, of course, I mean, you would be the guy, you guys would be the guy, you know, I mean, you'll be seeing me to ring the bell. Yeah. Any more questions? Done? Thank you. Thank you.